الله والفقه الأكبر والجامع الكبير لزادات فيزه الموصوف الدرر المغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الهداية وغاية الدراية وغاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والسلام والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي والشافعي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدكائك وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير المسائل وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنزائر مغني السائلين ونصاب المساكين أنهار القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى الملتبى المنتبى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل وإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وأهله وصحبه وحزبه مصابيح التجار ومفاحيق الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختمان الكريمين كل منهما نور العينين ومجمع البحرين وعلى متحدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم والغوث الأعظم 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 ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء جامع الفصولين فصول الحقائق وشرح المهذب بالمزين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحان الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان الله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त गाए चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर सारा हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान जाए शमाए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमदो सना के बाद और नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नबी मोहतरम ताजदार अम्बिया शाफ़ी रोज़े जज़ा शब असरा की दूल्हा मालिक हर दो सरा सदर कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात इमाम अम्बिया हबीब किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नज़राना पेश करने के बाद तकरीम खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम कायद अज़ीमत सिपा सालार काफिला इश्क मोहब्बत शहीद मुस्तफ़ा अमीर मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती उस्ताद उस्ताद उलमा खादिम हुसैन साहब रिजवी सकल्ला व सराव व जाल जन्नत मसवाओ। अल्लाह ताला आपका मिशन उम्मत मुस्लिमा को अपनाने की तौफीक अता फरमाए आमीन और आपका फैजान का शौक़ क़यामत जारी व सारी फरमाए आमीन। जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन सबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा सबजादा हाफिज़ मोहम्मद साहब हुसैन रिजवी साहब मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान आपको अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए हम सबको उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए तख्त पे हुजूर का तीर लाने के लिए दिन रात मेहनत से लगन से ज़ौक़ शौक़ काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाईं तरफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत असीर नामूस रिसालत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत आले नबी औलाद अली प्रोफेसर हज़रत अल्लामा सैयद खुर्रम रियाज़ शाह साहब मत्तान अल्लाह बितूल हयातिही आप तशरीफ़ फरमाएं और आपके साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मुश्ताक शाह साहब दामत फ़ैज़ुल आलिया आप तशरीफ़ फरमाएं। मेरे दाएं तरफ मस्जिद हारा के खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ रिज़वी साहब
आप तशरीफ फरमाएं। मेरे साथ हज़रत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत खतीब शीर लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना सज्जाद अदीब साहब रिजवी आप तशरीफ फरमाएं। सनाखान मुस्तफा इमरान साहब बैठे हैं। बानी महफिल मलक नबी साहब सुभान अल्लाह। बाबा जी के जाले बड़े ही जाले आप भी तशरीफ फरमाएं। और बाकी जो उलमा बैठे हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नामों से वाकिफ नहीं हूँ। हज़रत इफ़ करामी क्या है शाजी मुर्शिद बैठे सैयद अदीबुल्लाह शाह साहब बैठे किस ग्राम जनाब का मोहम्मद राज जी साहब जनाब अल्लामा हबीबुर रहमान मदनी साहब जनाब दा कबीर हुसैन साहब आगे जनाब है जी क्या दलाई साहब जितने भी यार को महबूब के आशिक कि इशाले स्वाब की महफिल में शिरकत के लिए हाजिर हुई हो, अल्लाह सबको अपने हबीब का प्यार अता फरमाए। किताब को हम शादी का सुनेंगे ना, मैं तो आपको जगाने के लिए पहले तकरीर कर रहा हूँ। मैं वाकई हकीकत कह रहा हूँ। शाह साहब ने 9 महीने जेल काटी है, मैंने नहीं काटी 9 महीने जेल। हज़रत शम्मास बिन उस्मान मैदान ओहद में इमाम उल अंबिया ने 70 सहाबा का जनाजा पढ़ाया। हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ाया। पता है आपको मियार क्या है? जनाजा नहीं पढ़ाया। हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इमाम उल अंबिया ने शम्मास बिन उस्मान का जनाजा नहीं पढ़ाया इस वास्ते कि हज़रत शम्मास बिन उस्मान ने जंग के दौरान जब हुजूर की तरफ तीरों की बौछार हो रही थी तो शम्मास बिन उस्मान महबूब के गिर्द यूं तवाफ करके दौड़ रहे थे। इतनी स्पीड से हम दौड़ रहे थे कि उन्होंने कोई तीर हुजूर तक नहीं आने दिया, सारे अपने बदन पे ले लिए। हदीस में फरमाया कन कुन फुज आप साढ़े जुबान देखा नाटक वाली से लग रहा है। से आप समझते हैं कोई जानवर होता है कंडेआली से, साहब समझ कंडेआली से कुछ जिस जानवर है वो बिल्ली से थोड़ा बड़ा होता है, जिस्म पर कांटे होते हैं उसके। जब कुत्ते उसके शिकार के लिए पीछे भागते हैं ना वो फसलों को बर्बाद करती है वो जानवर जो से है, तो फिर वो कांटे निकाल के ना पीछे जो जानवर कुत्तों को मारती है ऐसे जिस तरह मतलब फैर नहीं मारता इस तरह वो कांटे फेंकती है जिस्म से। तो अब पता नहीं लोहरियों को समझ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जो देहातियों को समझ आ गई जी। तो कल कुल फुल हदीस के अल्फाज है शम्मास बिन उस्मान से लग रहे थे। क्या मतलब जिस तरह से जिस्म में कांटे लगे होते हैं ना वो यूं खड़े कर लेती है ऐसे, तो उनके जिस्म में तीर यूं लगे हुए थे। कोई तीर महबूब तक नहीं जाने दिया। और मेरे महबूब की गुलामों तुम ये बताओ वो कितनी स्पीड से दौड़े होंगे। इधर से तीर आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन एक तीर हुजूर तक नहीं जाने दिया। और महबूब का दिफा करते करते शहीद हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहद्दिसीन ने फरमाया कि जनाजा इस वास्ते नहीं पढ़ाया, फरमाया कि मुहद्दिसीन ने कि जनाजा पढ़ा जाता है या तो गुनाहों की बख्शिश के लिए या दर्जात की बुलंदी के लिए। इमाम उल अंबिया के सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो महफूज हैं, वो गुनाहों से महफूज हैं। क्या अकीदा है? वो गुनाहों से ऊंचा बोलो, गुनाहों से महफूज है। तो इमाम उल अंबिया ने नाम वाला जो बाकी सहाबा का जनाजा पढ़ाया वो दर्जात की बुलंदी के लिए था। शम्मास बिन उस्मान का जनाजा हुजूर ने इस वास्ते नहीं पढ़ाया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब उन्होंने हुजूर की इज्जत में घूम के यूं पैर दिया जिस सब पे हमने सारे तीर ले लिए तो उस मकाम तक चले गए, आगे कोई मकाम था ही नहीं, आगे कोई मकाम था ही नहीं। तो दर्जात की बुलंदी के लिए जनाजा होना था, जब आगे कोई मकाम भी नहीं था तो हुजूर ने इस वक्त जनाजा नहीं पढ़ाया। तो मैं बात कर रहा था कि शाठी ने 9 महीने जेल काटी है। मैं था वो फरमाते मैं खुदा पाक रसूलुल्लाह था हम के शोर बचावे ना मुंह से रिसालत गुलशन अंदर कोई शोर ना फेरा पावे। हम कहते हम उनके कुत्ते थे। बेशक जब मैं निकला हूं इधर आने के लिए
फिर मैं मिजाज हजर अल्लाह का जनाब दा पता जा रहा ते निगाह फरमानी पीछे विशाल से पहले ना विशाल से पहले फिर पत्तों की से लोग आपकी बाजार में टाइम लेने के लिए मैं पास था वहाँ तो फरमाया कि मौलाना को टाइम लगा तेरा गल ध्यान ना सुनना तुम पता मैं तो तकरीर की थी पहले दसो फिर फरमाया मौलाना को टाइम विशाल तो पहले भी तो वक्त पहले की गल है जी विशाल तो पहले मैं आखिरी तकरीर की थी वो गल है फिर अच्छा मौलाना को टाइम लगा मैं आज की मैं उस्ताद साहब जी थोड़ी लो बनी हुई वो भी खराब थी वैसी लो समझ रहे हो ना जी लुक निकली हुई ना थोड़ी जी वो भी खराब हो वैसे आप इतने खिताबत के बादशाह और मैं कितने बड़ा कुत्ता अल्लाह हां फरमाया मैं भी कह रहा हूं तुम टाइम दो मैं कहा आप दो फरमाना फरमा देता ठीक है वो जनाब टाइम लेके चले गए वो मुकर्रम वक्त से आया तारीख है सदी थे मैं जो जान लगा ना पत्तों की कि मैं आप लोगों ने जान तो निकल लगा तो फोन किया आपने फोन करना चुके मसरूफ होने जो मैं ठोकर पहुंच गया मैं आपकी कॉल आई मौलाना खैर सी फोन थोड़ा किया सी मैं जनाब आपने हुक्म फरमाया सी पूरा करने जा रहे हूं तो तवज्जो फरमानी आपने हां फरमाया जब अल्लाह फजल करेगा सुभान अल्लाह वो तो मैं वापस प्रोग्राम हो गया वापस करके मैं आ गया उनने बंदे को फिर बाद से आपने पूछा मेरे सामने नहीं तो कितने चौड़ा ही ना हो जाए ये भी तरबियत का अंदाज होता है ना क्यों फिरो हाँ जी उनको ना कहने भी बुला के पूछा मैं सुनाओ यार जी मौलाना ने घंटा तकरीर की और फिर यकीन करो मस्जिद में बैठा हूँ मैंने उस दिन मुशाहिदा किया कि औलिया का तसर्रुफ क्या है औलिया की तवज्जुहात क्या है उनका तसर्रुफ क्या है उस दिन मैंने मुशाहिदा किया वाकई ये उनका फैजान था मैंने दुआ मांगी उनका फैजान था सुबह क़यामत जारी और सारी आमीन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस नाम नहीं लेता उन्होंने एक बहुत बड़े मौलाना को उस्ताद साहब के पास भेजा कि टाइम लेने के लिए कि मेरे घर में महफिल मिलाद है तो जाओ रिजवी साहब से खिताब के टाइम लेके आओ खिताब के लिए वो मौलाना आ गया वो जज भी अभी मौजूद है और जो मौलाना है तो वो अभी भी जिंदा है वो टाइम लेने के लिए आए उस्ताद साहब से मुलाकात हुई लंगर वगैरह पेश किया चाय पानी जो मौके पर मौजूद था फिर वो पेश किया तो उस्ताद फरमाया जनाब से मौके में सीख लिया मौलाना ने किया उन्होंने क्या हुजूर मैंने हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने मैंने भेजा ते घर महफिल ना करानी ते आप दे कोल टाइम चाहिए आप दे खिताब दा पूछा केड़ा चीफ जस्टिस उन्होंने दस्या जी फलां आपने फरमाया कि जाके उस चीफ जस्टिस को मेरा पैगाम दे जब तू अदालत की कुर्सी पे बैठा सी ना ते हुसैन के नाना की इज्जत का पहरेदार गाजी अहमद शेर खान न्याजी उसकी जमानत तेरे पास लगी थी और तूने उसकी जमानत नहीं ली थी कहता हुसैन का नौकर खादिम हुसैन तेरे घर तकरीर करने के लिए नहीं आएगा हुसैन के नाना के इज्जत के पहरेदार की तूने जमानत नहीं ली और मुझसे तो मिलाद की तकरीर में टाइम मांगता है फरमाया कि हुसैन से नौकर खादिम हुसैन तकरीर करने के लिए कभी नहीं आएगा ये तुम्हारी भूल है केड़ी भूल है महफिल मिलाद तू करानी दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा सर सर मोम या संग हो इधर तू मिलाद भी करवा रहा हूं उधर मुहाफिज नामूस से सारा की जमानत भी नहीं ले रहे हैं ये 10 से केड़ा मिलाद है तो आप कितने गैरतमंद थे अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को आपकी गैरत में से कतरा अता फरमाए आमीन एक कतरा अता फरमाए मस्जिद में ना अपने झोली फेरते हैं मस्जिद में हर मस्जिद में फेरते हैं हमारी मस्जिद में भी झोली फेरती थी उस्ताद साहब बड़े एहतिमाम के साथ मस्जिद की झोली में खुद चंदा डालते माशाअल्लाह एक दफा आपने और ये मामूल था कि आपकी जेब में जो पैसे होते हैं ना जी जिस तरह ये टिश्यू नहीं है इकट्ठा मुकट्ठा है इस तरह होते हैं असली तो बड़ी सेटिंग करके
तरतीब ला के हैं बड़े सीधे पदरे करके रखने हैं ना, है भी गाले ना, कोई है कि नहीं यार? अच्छा आप इन्हें इकट्ठे तुसी देते थे एनजे के किन्ना देते थे नजराना जे इधरों भी इकट्ठे करके ये तो आप गिरफ्तार होए सन ना और लगभग जेल किलो उठ जाके आपने मुझे तलाशी लेने सारी तलाशी ली उन्होंने ना बाबे ने जब खाली किए ना पैसे मिले उन्हें ढेर लग गया पुलिस वाले गिनती कर घंटा लग गया पूरा गिनती की थी 6 लाख रुपए सुभान अल्लाह कितने पैसे 6 लाख रुपए क्या हुआ वो इतने पैसे तू कितों लेंदा आप फरमाया ओए तुम दिन के मुलाजिम हो और तुम्हें हजारों में देते हैं वो भी गालियां सुनने के बाद मैं जिस बाबू का नौकर मुलाजिम को लाखों में देते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा एक मैं नहीं कुल पिनने हन लजपाल दी दर वदे पिंदे हन सर नीमा कर कोई पिंदा हा कोई नाल निगाह वदे पिंदे हन कोई डुस्कियां भर है ही पिंदा कोई झुण साव दे पिंदे हन वो झोक द शौकत क्या पुछदा है हन वक्त दे शाव दे पिंदे मैं तू महबूब को मांग के दे जो ढेर तेरा तेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए गुरबे बहा दिए उनके दर से खाली जाए ये तो हो सकता नहीं जिनके दरवाजे खुले थे हर बला के अच्छा तो पैसे ना इकट्ठे मुकट्ठे दे आप एक ये भी मामूल सी कि जेब में हाथ मारना ते जेड़ा नोट बाहर आया ना वो वापस मोड़ की जेब में नहीं पावना राना देना किसी मंगना रू देवने वो नोट उनको दे देना बस ये झोली पैसे पाने लगे मुझे खुद फरमाया आपने बाद में बताया बड़ी गर्म नवाजी थी मैं यकीन करो आपको मैं बता नहीं सकता उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ आपने बाबा जी खिताबात वगैरह सुने होंगे जब खिताबात में जब दाईं तरफ देखते हैं यूं फरमाते क्यों जी मौलाना वो इस अपने कुत्ते को फरमाते थे और ये कोई खतीबाना जुमला नहीं था बल्कि वो उनके अल्फाज निगाहों से निगाहें मिलती और क्यों जी जब ये जुमला फरमाते तो आंसू जमीन पे गिर पड़ते कैफियत बदल जाती रूहानियत तारी हो जाती तो क्या बात कर रहा था हाँ तो आपने झोली खेलने लगे ना फिर तो वो जनाब यूं निकाला ना नोट तो झोली सामने आई तो 5,000 अल्लाह मुझे खुद बताया फरमाने लगे मौलाना मैं यार 1000 का नोट करना सिर्फ 5,000 का नोट निकल आया फरमाने लगे मैंने जेब में पा के 1000 का नोट कढ़िया ये तुम्हें झोली पान लगाना ते फरमाने कि मेरे दिल से खाला रिजवी रब ते तेनु बड़े बड़े नोट देंदा ते तू ओदे घर निक्का चुन के देना नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसाला या रसूल अल्लाह हैदरी या अली जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक फिर आपने 5,000 का नोट ही डाला मस्जिद की झोली में आपने तो अपने बारे में ना कोई जुमला सख्त बोला मैं अदब ये सब जुमला नहीं बोलता आपने अपने बारे में बोला जुमला मैं रिजवी तेनु रब बड़े बड़े नोट देंदा ओदे घर दी वारी तू निक्का जोड़ के देना माने मैं 5,000 का नोट ही जोड़ी पाया अमानतदारी आपकी क्या अजीमत की अमानतदारी एक बंदे ने आकर आपको 20,000 रुपए दिया और अर्ज की कि हुजूर ये 10,000 मस्जिद के हैं और 10,000 मदरसे के 20 नोट से इकट्ठे वो दे के चला गया मुझे बुलाया उस वक्त मैं 3रे साल में गालिबन पढ़ता था दरस निज़ामी की क्लास में मैं 3रे साल में पढ़ता था अब मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए मौलाना मेरी क्लास के जो मेरी पहली क्लास दरस निज़ामी से फारिग हुई है ना तो उसके स्टूडेंट हैं तालिब इल्म बाद और कितने फारिग हो गए मैंने कितने पहुंच गया उन्हें पत्नी कितनी क्लास पहले और निकल चुकी है उसके बाद ही अच्छा
आपने 20 नोट आपके को है मैंने बुलाया मैं बुलाना है ये बंदा एक आया तो 20,000 रुपए दे गया तुसी मदरसे तालिब इल्म पढ़ दो उन्हें दस्या नहीं बंदे ने कि 10 नोट मस्जिद ने केड़े ते 10 मदरसे ने केड़े मैं आज भी मैं हुजूर दान नोट जड़ी हुए 10,000 रुपए ही है जेड़े मर्जी अदा कर लगे आप फरमा नहीं लोगों ने छड़ दूं लोग की जो मर्जी कर बड़े बड़े कपड़े कर दे रहा जो मर्जी कर दे रहा तू तालिब इल्म में तू 10 नोट मस्जिद के अलग कर और 10 नोट मस्जिद के मदरसे के अलग कर मैंने गिनती की ना मैंने कहा जी ये 10 नोट मस्जिद के हैं ये 10 मदरसे के हैं अब मुझे बताएं नोट कोई भी होते 10 तो नोट 10,000 रुपए तो था ही सही है लेकिन उन्होंने ये भी नहीं गवारा किया कि वो नोटों की भी ताहीन हो क्योंकि सदका मस्जिद पे नहीं लगता सदका मस्जिद पे नहीं लगता तो फिर मैंने वो 10,000 अलग किया दूसरा अलग किया तो फिर आपने मस्जिद के खाते में भी डाल दिया और मदरसे के खाते में भी डाल दिया आपकी सखावत आप फरमाने सन के जड़ा सखी नहीं मैं वली नहीं मानता वली हो जे कंजूस होवे फरमाने सी मैं उन वली नहीं मानता वली होंदा ही सखी है बेशक पहली दफा हम जब फैजाबाद धरने में गए वहां पर जब वापस आए तो वहां जो लोगों ने आपको वहां नजराने पेश किए जब वापस आके गिनती की ना तो 75 लाख रुपया था सुभान अल्लाह कितना 75 लाख रुपया था कोई और होता उन्हें जेब में छुपा लेना सी हां जी प्लाट लो गड्डी लो मकान लो आपने की फरमाया आपने फरमाया कि फैजाबाद 8.5 जवान शहीद हुए 5-5 लाख अलग करो ते आप खुद उन्होंने घर में चल के 5-5 लाख रुपया नगद जाके पेश किया अंदाज कैसी जदों आप पीछे गए ना अपने बड़े ने गोल गाजी सुफियान के घर ते गए ते 5 लाख रुपया उन्होंने पेश किया और मां ते वालिद ने ते कह जनाब के ਤੁਹਾਡੇ पुत्र की एक सांस की कीमत भी नहीं एक तोड़ना इज़हार हमदर्दी है जमात अल्लाह एक तोहफा एक नजराना तुझे कबूल फरमाओ गाजी सुफियान की वालदा वो आई कहने लगी बाबा जी एक तो मैं पुत्र दे चुकी हैं 2 मेरे पुत्र हो रही हैं ये लोड नहीं देवी दे देंगे बाबा जी ने थोड़ी धोती मुबारक धोती जो आप इस्तेमाल करते हैं चादर आपने कट करना मां जी है ले लो पुत्र कोई नहीं देता कायनात की हर शय मिल जाती है फिर आपके अबू जान उन्होंने कहा कि बाबा जी पुत्र तो मैंने कुर्बानी के लिए पेश कर दिया है कुर्बान हो भी गया है अगर मुझ बूढ़े की कुर्बानी लगती है तो मैं भी हाजिर हूँ बाबा जी के हाथ में घड़ी थी आपने घड़ी उतारी उनको दे दी बाबा उन्होंने वाले से घड़ी चुनी जाना अब ये घड़ी से बात मुझे याद आ गई मेरे हाथ में जो घड़ी है ना पीरो मैंने मैट्रिक करने के बाद हिफज किया रेगुलर मैंने मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली पोजीशन थी मैट्रिक सुभान अल्लाह 1 साल 10 माह में मैंने हिफज किया था माशाअल्लाह अच्छा मैंने उस वक्त स्कूली माहौल था मैं स्कूली मुंडा काजी मुंडे पता कि मैं होंदे फिर अच्छा मैं ना बड़ी अच्छी पीरो घड़ी दा वाले साहब मैं बड़ा भी सन नाज बड़े उठांदे सन ते मैं उन्हें बड़ी अच्छी गाडो घड़ी मैं उन्हें लेके दी अच्छा मैं जो दस गाली पढ़ना ना पीरो ते बाबा जी को पढ़दे सन ते मैं वेख्या ते बाबा जी घड़ी कोई नहीं पांदे मैं घड़ी ला दी अच्छा कोई साल गुजरे ना पीरो दस नामी क्लास में फारिग हुए हैं ते आपने घड़ी पानी शुरू कर दी ते घड़ी आप इस तरह दी पांदे सन पट्टे वाले चैन वाले नहीं सी आप पांदे सुभान अल्लाह अच्छा मैं ते सोचा कि बाबा जी घड़ी पानी शुरू कर दी थी ते 80 घड़ी ते पावनी ते बाजारों भी नहीं लेनी ते लेनी थी बाबा जी कोले तवज्जो लेकिन मंगनी भी नहीं वाह साल गुजर गया अब साल को ना खाली 1 साल पहले मैं घड़ी नहीं ली बिल्कुल मैं अगर लेनी भी बाबा जी कोले ते मंगनी भी नहीं मांग के तो फिर फायदा ही कोई नहीं होता ना जी चीज दा ओ जेडे बुजुर्ग खुद पे मांगते क्यों फिरो अच्छा अब साल से पहले ना दिन मेहमान मिल के चले गए मैं और बैठा रहा ते आपने हाथ से घड़ी बंधी हुई ऐ
घड़ी बंदी नहीं कल्ला में बैठा आप नैन करेंगे ना ला के सबने बोलो मैं तुझसे होते हाँ सुना दूंगी सोच दसी यानी एक तरह की फिरासत मोमिन फैनो यंज़िल बिनूरिल्लाह मोमिन की फिरासत से बच्चों को अल्लाह की नूर से देखता है सुभान अल्लाह तेरे नाम में कहानी से उठना बिन हर रोज चुमना ना है मेरे कायद बाजू में अल्लाह ने कितने उन्हें जिस्म दे बोसे करते ए केड़ी बरकत वाली मैंने तो खतरे से मैं इन जन्म के बुलाना लाई ना पहले मैं जहन बना रहे थे लेकिन लाई तो मैं वापस मैं तो नहीं गुफ्तगू कर रहा ना भाई मैं बाबू सुनना है मौलाना रहना वो सब बड़ी लमन की तरह अल्लाह अल्लाह तो ये अभी मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है ना ये उनकी अदाएं थी उनकी सखावत है सखावत की बात हो रही थी तो वो जनाब 5-5 लाख रुपया हर वादी घर में जाके आपने खुद पेश किया नगद 8 बजे 40 लाख रुपया यूं तकसीम हो गया मुझे 35 लाख बच गए 35 लाख हमारे जो कारकुन 1200-1100 गिरफ्तार हुए थे उस वक्त 17 में तो फरमाया कि सबकी ज़बान से करो 35 लाख रुपया ज़बान पे लगा था उस वक्त और सारे आपने दे दिए थे उलाइका आबाई फजेली बिमिस्लिहिम ये हमारे बड़े बिल्कुल बिसला सकते हैं तो लाए गाज़ीउद्दीन फैज़ाबाद में शहीद हुआ बाबा जी जेल से आओ गए 6 महीने के बाद गाज़ीउद्दीन का वालिद गांव में मिला होगा आपने उनसे पूछा कि यार मैं तो जेल चला गया इसी कानून पूछो कोई पैसे वगैरह किसी देते मंत्री उन्होंने लिखा उन्होंने क्या किसी जेल गए और उसके बाद मैंने उनके से कोई राना नहीं देता आपने मेरे सामने 60,000 रुपया गिर के उन्होंने दिया कितना 60,000 रुपया इससे अगली बात 16 साल के बाद हाजी अहमद शरीफ न्याजी को बाबा जी ने 19 लाख या 21 लाख रुपए दे के मुद्दई को बगैर माफी मांगे कोर्ट लखपत जेल से रिहा करवाया कितने साल के बाद 16 साल के बाद आपने रिहा करवाया 16 साल तक किसी उन्होंने कुछ नहीं उन्होंने 2 गुस्ताख मारे थे एक आरिफ इकबाल भट्टी जज दूसरा एक चकवाल शिया से उन दोनों गाली सब फड़काया सीधे 16 साल के बाद उस्ताद साहब ने 21 लाख रुपया दे के मुद्दई नु कि आपने रिहा करवाया माफी मांगे बगैर और 7 साल तक अमीरुल मुजाहिदीन ने गाजी अहमद शरीफ न्याजी के घर में महाना 15,000 रुपया खर्चा भेजा कितना ये अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने सिफात से नवाजा था जब कोलक पर जेल बड़ी मजे की बात है कोलक पर जेल जब गिरफ्तार हुए तो जब वहां पर गए ना पियो और मानने लगे मौलाना सर्दी सी कि मेरी नींद बड़ी आई तो मेरे को एक धोती सी तो मैंने मैं धोती जमीन पे बिछाई कि मैं यार सोने तो मान लगे मैं देखा कि एक लाल बैग धोती को भज गए दूसरा लाल बैग भज गए तीसरा लाल बैग भज गए और मान लगे मैं सोचा कि इन्हें तो मैं को नहीं समझ नहीं तो मूत कर वैसा तो बड़ी बंदे नु कोफ खोल दी तो मान लगे कि मैं ना धोती दे लम्बा पैंट लगा के मैं क्या होए लाल देखो मैं इमामुल अंबिया की इज्जत और नामूस के लिए जेल में आया हूं अल्लाह अगर कोई लाल बैग मैं सोने लगा हूं मेरे मुंह के ऊपर चढ़ा मैं इमामुल अंबिया को शिकायत कर दूंगा नारे तकबीर अल्लाहु